Hello everyone, welcome to our channel AS Academy. So today we'll starting with 9th standard state board lesson number 1, that is laws of motion. So laws of motion is the most easy and most confusing topic to the student. Okay, आपको जो है laws of motion है इतना हार्ड लगेगा. इट्स अ वेरी हार्ड टॉपिक फॉर स्टूडेंट. मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं एवरीबडी टेल्स दैट लॉज ऑफ मोशन नो दीदी नो, इट्स वेरी हार्ड. सो इट्स वेरी इजी टॉपिक. आपको मैं ऐसे चुटकी में बताऊंगी व्हाट इज इट and how it works, how all motion works, what is distance displacement, what is scalar vector, what is speed and distance. We will discuss everything in this chapter. In this lecture only we will discuss distance and displacement. So first thing, when we start with laws of motion, so first thing which comes in our mind is what is motion. Motion, if I have to tell, any kind of movement you are doing is called as motion. Even if I am talking, so my lips movement is in motion. Yes, even the fan is running, so the fan is in motion. Yes, so motion क्या होता है, आप जितना भी चलोगे, जितना भी आप हिलोगे डुलोगे, जो भी होगा, it's come in motion. Okay, so the first thing which is mentioned in your book is the flight of a bird. Okay, tell फlight of a bird motion में आएगा क्या? Yes, exactly, it will come a stationary train. What is stationary? Stationary means stopping, जो एक जगह पे रुकी हुई है. So stationary train motion में आएगी क्या? No, not at all. Leaves flying through air, अगर पत्तियां हवा में उड़ रही है, so it will come in motion or not? Yes, it will come in motion. A stone lying on a hill, एक पत्थर है जो हिल पे पड़ा है, सही सड़ा पड़ा रह गया है, so it is in motion or not? No, it is not in motion. So I think you are clear about motion. Motion क्या होता है सबको पता चल गया. Motion is very easy topic, हम सबको पता है what is motion. चलो, now next very important topic is distance and displacement. Distance हम सब ने अपने लाइफ में somehow distance we have traveled. Now I am 21 years, so I am traveling the distance from 1 year, not from 1 year, from my birth to here I am traveling some distance. Any distance which is there, I am traveling some distance. Okay, but displacement is the shortest. Okay, time machine displacement, यहाँ से वहाँ. Okay, direct displacement हो रही है. Okay, सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक. अगर आप कहाँ पे जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू वन मॉल. ओके, सो हम एक एग्जांपल लेंगे. सो लिसन, इफ़ यू आर गोइंग टू वन मॉल एंड मैं आपको बोलूँ कि इस साइड से जाना, फिर लेफ्ट लेना, फिर यहाँ पे जाना, फिर इस साइड पे नॉर्थ ईस्ट को जाना, एंड देन अगेन लेफ्ट लेना, फिर राइट टर्न लेना, फिर यहाँ पे जाना, देन आपको वो मॉल मिलेगा. लेट्स चेक पवेलियन मॉल. सो आपको वो पवेलियन मॉल मिलेगा. ओके, so is it in direction? Does it show any direction over here? No. But if I tell you that go to the northeast side, yes, go to the northeast side, just walk in your northeast side and you will find the pavilion mall. So will you go? Yes, you will go, and that will be the shortest distance. Okay, so now we'll take one example of distance and displacement. It will give you a total idea about what is distance, what is displacement, and what I am trying to tell you. Okay, chalo, here is Rahul. Okay, wait, I will take another pen. And here is Rahul's school. ओके, राहुल यहाँ पे रहता है और राहुल की स्कूल यहाँ पे है. ओके, राहुल लिव्स है, राहुल की स्कूल यहाँ पे है और राहुल को यहाँ से अपने स्कूल पे जाना है. राहुल को क्या करना है, यहाँ से अपने स्कूल को जाना है. सो राहुल क्या करेगा, राहुल कैन ट्रैवल एनी डिस्टेंस. वो चाहे तो यहाँ से एक दुकान में जा सकता है, यहाँ से चॉकलेट खरीद सकता है, देन ही कैन गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस, देन दे बोथ कैन गो टू एनीथिंग बस स्टॉप. ओके, वो बस स्टॉप को जा सकते हैं और बस से फिर उसे यहाँ से लेके
इस साइड को अपने स्कूल को ले जा सकती है। तो उसने इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यस, राहुल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो कैन यू सी एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन ओवर हियर? नो, you are seeing only left turn, right turn, right turn, left turn. Okay, you have not seen any kind of direction over here. But क्या मैं राहुल को बताऊं कि भाई तू इस साइड में मत जा, तू क्या कर, यहाँ से सीधा नॉर्थ ईस्ट साइड ले, यहाँ से सीधा नॉर्थ ईस्ट साइड ले और इस साइड से तू अपने स्कूल को बस 2 मिनट में पहुंच सकता है, जो कि यहाँ पे तू आधा घंटा वेस्ट कर रहा था। इस साइड से आप सिर्फ 2 मिनट्स में पहुंच सकते हो। सो एम आई टेलिंग राइट टू राहुल और रॉन्ग? Yes, I am right because I am telling him a shortest path, and this shortest path from one place to another is called as displacement. Okay, सिर्फ जगह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्टेंस इसमें कम से कम लग रहा है। डिस्टेंस इसमें क्या है, कम से कम लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस कवर हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस आपने सिर्फ ट्रैवल किया है, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। ओके, so this example you have understand. Now we'll take your textbook in example, that is Sheetal and Prashant's example. Again the same kind of example. चलो सी, यहाँ पे शीतल का घर है, शीतल इज लिविंग हियर, प्रशांत इज ऑल्सो लिविंग हियर. ओके, आई थिंक बोथ आर ब्रदर और सिस्टर. ओके, हियर इज संगीता's हाउस. संगीता का घर यहाँ पे है और यहाँ पे स्कूल है. ओके, सो नाउ सी, दोनों को भी स्कूल को जाना है. शीतल क्या करेगी, शीतल जाती है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, शीतल जाती है पहले संगीता के घर पे और संगीता को लेके दोनों जन जाते हैं अपने स्कूल पे. तो शीतल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? यस, शीतल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? शीतल will travel 500 plus 1200, sorry, I think 500 plus 1200, yes, 500 plus 1200 शीतल is traveling the distance. तो शीतल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 500 plus 1200 is equals to 1700. yes, but प्रशांत जो होता है, प्रशांत is very intelligent बॉय, उसने शॉर्टकट चुन लिया. उसको पता था कि मैं अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो मैं बस 2 मिनट में और कम से कम पाथ ट्रैवल करके अपने स्कूल पहुँचूंगा. इतना होशियार था प्रशांत. तो प्रशांत ने अपना दिमाग लड़ाया और वो इस साइड से एक डायरेक्शन चूज करता है कि अपने घर से वो एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वी कैन से. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के साइड में वो चला जाता है and he covers only 1300 meter distance. So can I say this distance Prashant has traveled is the displacement because उसने direction as well as अपना shortcut shortest path choose किया है. yes, but शीतल जो है, शीतल को अपनी फ्रेंड ज़्यादा पसंद थी, so वो 500 मीटर ज़्यादा चल के गई और फिर उन दोनों ने मिलके संगीता के घर से मिलके अगेन 1200 मीटर चल के गई. तो शीतल इज अ फूल गर्ल. शीतल ने इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया है. शीतल इज नॉट फूल गर्ल रियल में, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. बट नाउ you have understand what is displacement. yes, very clearly I can tell you. Now see, we'll take some examples about distance and displacement. Not examples but some kind of definitions. Okay, so now we'll starting with our major topic, that is distance and displacement, which confuse you a lot. This topic is very hard to understand, not hard but very confusing to understand. So the first point we have written over here is length of the path traveled by an object in a motion while going from one place to another.
जितना भी पाथ आपने ट्रैवल किया है, चाहे आप यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके वेट, फ्रॉम दिस पॉइंट यू आर गोइंग टू दिस पॉइंट, आपको पता है यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन आप पहले यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, देन यहाँ पे, then you are reaching to this point. Okay, so however any path, okay, any distance you have traveled is called as distance. Okay, the length of the path traveled by an object, आपने जितना भी length travel किया है in a motion while going from one place to another, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने तक जितना भी आपने पाथ ट्रैवल किया है इज अ डिस्टेंस, और ये एकदम इजी डेफिनेशन है इसकी. ओके, बट when we see displacement is minimum distance between starting point and finishing point. स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टकट आप जिसको बोलते हैं वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट. लाइक यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर और आपको जाना है यहाँ पे. ओके, आपको यहाँ पे जाना है. सो अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, आपको पता नहीं है, तो यू आर गोइंग लाइक दिस यहाँ पे. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आप इस जगह से शॉर्टेस्ट वे इस साइड में जाओगे. यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी दिस साइड. सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. ओके, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल from starting point and finishing point. Okay, minimum distance between starting point और finishing point. You are here, so this is the starting point. आपको यहाँ पे जाना है, this is the finishing point. तो ये जो हुआ ये होगा minimum distance. Okay, so displacement is the minimum distance. Now coming to the second point, distance does not have direction. डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होता. आपको यहाँ पे जाना है, आप यहाँ से कहाँ पे भी जा सकते हो. आप अपने फ्रेंड के घर पे जाओ, फिर किधर और शॉपिंग के लिए जाओ एंड गो टू दिस स्कूल. ओके, सो ऐसे जा सकते हो, कहाँ कैसे भी आप घूम के जा सकते हो. डिस्टेंस आपको डायरेक्शन नहीं बताता. डिस्टेंस बस आप जो ट्रैवल कर रहे हो, जो चल रहे हो, वो डिस्टेंस होगा. सो डिस्टेंस डज नॉट हैव डायरेक्शंस, बट डिस्प्लेसमेंट हैव डायरेक्शंस. आपको शॉर्टकट चाहिए, आपको इजीली स्कूल में पहुंचना है घर से. सो राहुल वांट्स टू गो टू द स्कूल. आपको इजीली अगर स्कूल को जाना है तो आप क्या करोगे, यू विल फाइंड लाइक यू आर स्टैंडिंग एट योर होम. ओके, आपके घर के पास आप रुक रहे हो, तो आप वे देखोगे कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ. सो यू विल गेट द आइडिया. यस, अगर मैं इस डिग्री नॉर्थ ईस्ट साइड से जाऊँ तो आई कैन रीच द स्कूल ईजिली. सो मुझे क्या यहाँ पे मिला, आई गॉट द डायरेक्शन. I find out the direction and then I continue with the magnitude. Okay, so I find out the direction. Yes, so displacement is direction. Displacement has direction. Okay, next topic is it has only magnitude. Again, इसको direction नहीं है, सिर्फ इसको magnitude है. What is magnitude? Most of the students don't know what is magnitude. Magnitude is value. Okay, magnitude is nothing but value. आप जितना ट्रैवल करते हो, आप यहाँ से दिस पॉइंट से यहाँ पे जाओगे, सो आप कितना ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज योर वैल्यू एंड दिस इज योर मैग्नीट्यूड. जो भी आप ट्रैवल करते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, विच एवर डिस्टेंस यू आर ट्रैवलिंग इज योर मैग्नीट्यूड. सो डिस्टेंस ओनली हैज दी मैग्नीट्यूड, ओनली हैज वैल्यू. ओके, नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. आपको अगर यहाँ से इस साइड में जाना है, सो यू विल सी दैट 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट. जब भी आप देखते हो, आपको एक प्लेस से आपको स्कूल को जाना है, सॉरी स्कूल नॉट, बार बार स्कूल हो रहा है. सो अगर आपको एक प्लेस से if you are going to shopping mall, so आप क्या ढूंढोगे, easy way that yes, take this north south east or any side. Okay, take north east side and go to that way. Okay, उस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, so you will reach easily. Okay, so like here is the mall, here is your original position.
in your initial starting position. आपने स्टार्ट किया, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर मैं इस साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा तो आप वहाँ पे इजीली जा सकते हो। और अगर ऐसे गए तो क्या होगा, आपका डिस्टेंस ट्रैवल होगा और यहाँ से डायरेक्ट इस प्लेस से इस प्लेस पे जाओगे तो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिस्टेंस में 2 किलोमीटर साउथ, 5 किलोमीटर नॉर्थ मीन्स व्हाट, you are writing displacement किलोमीटर एज वेल एज दिस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में आप क्या लिखते हो, वैल्यू एज वेल एज दिस डायरेक्शन। एंड डिस्टेंस में आप क्या लिखते हो, ओनली वैल्यूज। यू डोंट राइट डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में गए उस डायरेक्शन में गए, नो। ओके, नाउ डिस्टेंस इज ऑलवेज इन प्रोग्रेसिव वे। आप डिस्टेंस जो कवर करते हो वो ऑलवेज कौन से वे में होता है, प्रोग्रेसिव वे में होता है। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप जितने भी चल के जाते हो, हवे वो यू आर वॉकिंग, जितना भी आप वॉक करते हो वो हमेशा प्रोग्रेसिव वे में होता है। दैट्स वाई डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीनवाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और एज वेल एज जीरो। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। वो मैं कैसे होता है वो आई विल टेल यू हाउ इट बिकम जीरो। ओके, सो दिस पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, distance has only magnitude. This is the major point. Okay, so now we'll see what is scalar and what is vector. Scalar quantity and vector quantity, most important part. Why distance is called as scalar and why displacement is called as vector? So anybody has any answers? Okay, so it is a video so you can't give me answer but you can write it down in your comments. Okay, chalo, scalar quantity and vector quantity. Now we have seen distance and displacement. Distance has only magnitude. Distance has only magnitude. So the quantity which has only magnitude is called as scalar. जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यूज है, ओके, सिर्फ अपनी वैल्यूज है, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी के पास अपनी वैल्यू भी है एज वेल एज उसके पास अपनी डायरेक्शन भी है, वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो यू आर क्लियर विथ इट नाउ, स्केलर एज वेल एज वेक्टर। Yes, okay, so now we'll see next in next chapter we'll see what is negative displacement, positive displacement and zero displacement. Thank you.